Hello everybody, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. In today's session, as we know that we are going to discuss 5 words which have been taken from the newspaper, the Hindu newspaper specifically. These words will help you in solving the reading comprehension based questions. Specifically, when you read a passage, you come across a lot of words which are difficult but high frequency and trending. So in order to acquire the information, you have to have good command over the vocab. So अगर जो वर्ड उसमें मेंशन है, अगर आपको वही नहीं आता रहेगा, तो you will not be able to decipher the meaning of the passage correctly and you will end up getting a lot of minus marking. Even though you think that मैंने सही किया है, but वो minus marking हो जाती है. Before we proceed further, let me tell you the admissions for 1-year program and 2-year program at Manu Law classes is open. You are most welcome to call and inquire and know all the details about CLAT, ALET and other law entrance examination. Our representative will be more than happy to help you. You can do so by reaching out to us on the contact number that is 9971444054. For more information on our courses, you can visit www.lawentranceindia.com. Okay, so let us start the session. The first word in the list is anticipate. So what do you mean by anticipate? Anticipate करना मतलब एक अनुमान लगा लेना, ठीक है. For example, expect or predict, realize beforehand और foresee. So anticipate करना मतलब एक आप anticipate कर पाते हो, पहले से अनुमान लगा लेते हो किसी भी result का, consequences का. Okay, for example, our parents can anticipate all our needs. Our parents can anticipate all our needs before we tell them. तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो हमारे सारी ज़रूरतों को पहले से ही एंटिसिपेट कर देते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव से भी एंटिसिपेट कर देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इज वी हैव ट्राइड टू एंटिसिपेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल द इवेंचुअलिटीज़. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम पूरा प्लान करते हैं सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में देखते हुए, कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में देखते हुए, बट फिर भी 100% तैयारी हो ये जरूरी नहीं है. कुछ अनफोर्सिंग चीज़ें हो जाती है, हम उसके लिए भी तैयार नहीं हो पाते. सो यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है हमने पूरी कोशिश करी है, हर प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है हर इवेंट को, पॉसिबल इवेंट को फोरसी कर पाना, एंटिसिपेट कर पाना. द सिनोनिम्स आर एक्सपेक्ट और फोरटेल एंड द एंटोनिम्स आर ड्रेड और डाउट. ऑलराइट, The next word in the list is exploit. Exploit का मतलब होता है in हिंदी it is शोषण करना, है ना, शोषण करना. So to gain an advantage by doing something unethical. Let's say कि आप कहीं पे जा रहे हो and ऑटो फेयर आप जो हुआ वो आप नहीं देते हो या कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है. So kind of exploitation है. Let's say कि a person has been given some authority to perform some action but he is not performing and instead of doing that he is getting a lot of money and all these things. So this comes under exploitation. Exploitation means शोषण करना, take advantage of. ठीक है, अब ये दो तरीके से यूज किया जाता है. पहला एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण है दैट इज इन अ नेगेटिव वे. ऑन द अदर हैंड एक्सप्लॉइट का एक और मतलब होता है दैट इज मेक यूज ऑफ. लेट्स से कि एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव. अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मेक अ गुड यूज ऑफ समथिंग. सो एक्सप्लॉइट कैन बी यूज्ड ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. सो एक्सप्लॉइट का मतलब मेक अ यूज ऑफ किसी अवसर को जो आपके सामने है, किसी परिस्थिति का पॉजिटिव वे में आप उसे यूज कर पाते हो. ऑन द अदर हैंड एक्सप्लॉइट का एक दूसरा मतलब है दैट इज नेगेटिव, दैट इज to gain something unethically, right? So for example, fuel suppliers will exploit the national oil shortage by raising prices to increase their bottom lines. ठीक है, सो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जो जमाखोर होते हैं वो जमा कर लेते हैं चीज़ों को और फिर जब मंदी आ जाती है तो वो उसे रिलीज करते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसा बना सके. दैट इज फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. अनदर एग्जाम्पल इज वी शुड नेवर एक्सप्लॉइट एनीवन. यस, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि ये सही चीज नहीं है. द एंटोनिम्स आर लॉस एंड ट्रीट फेयरली. द थर्ड वर्ड इन द लिस्ट इज नॉवेल. नॉवेल के कई मतलब होते हैं. पहला तो एक नॉवेल जो आप पढ़ते हो,
तो दैट इज नाउन। बट हियर एडजेक्टिव में नावल का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज न्यू। जैसे कि आपने जब कोविड आया था तो नोवेल कोरोना वायरस, ऐसा आपने सुना होगा ऑडियो टोन में जब आप किसी को फ़ोन मिलाते होंगे। तो नोवेल का मतलब होता है समथिंग न्यू। आई फाउंड इट वेरी वेरी रिलेवेंट, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स होते हैं, क्योंकि मुझे पता है तो आपने उस हिसाब से सोच लिया, बट यू डिड नॉट नो कि व्हेन इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब डिफरेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे नॉवल का मतलब समथिंग न्यू, अनयूजुअल और यूनिक। फॉर एग्जाम्पल शी हैज सजेस्टेड अ नॉवल अप्रोच, एक नॉवल अप्रोच। तो क्यों ये एडजेक्टिव है, बिकॉज ये अप्रोच करने के तरीके को डिफाइन कर रहा है। नॉवल अप्रोच, एक नया अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज द स्टूडियो इज लुकिंग फॉर नॉवल कॉन्सेप्ट्स to turn into original television series. The synonyms are new and original, and the antonyms are traditional or old. The fourth word in the list is circumspect. Circumspect एक adjective है. It means to think carefully before doing or to say something in order to avoid risk or consequences or be cautious. So circumspect में बहुत ही ज़्यादा सावधान होना किसी भी काम को करने से पहले। सो टू थिंक केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सोचना, बिफोर डूइंग, किसी काम को करने से, और बिफोर सेइंग एनीथिंग, कुछ कहने से पहले। इन ऑर्डर टू, क्यों, ताकि होता है कभी कभी लोग बोल देते हैं कुछ ऐसा जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसी से बचने के लिए। सो circumspect is being cautious. Okay, for example, in this day and age you need to be circumspect about giving out too much personal information on the internet. So अगर आपने अपने बहुत सारा information इंटरनेट पे दे दिया है, so क्या प्रॉब्लम होगी, there are predators, basically they seek information, उसके बाद वो हैक करके अकाउंट से पैसे गायब कर देते हैं। Okay, so in this day or age you need to be circumspect, मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने को आप circumspect कहते हो, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने को, cautious रहने को। Next example, we must be circumspect of those who offer us riches for nothing in return. बहुत ध्यान दीजिए, कभी कभी आपके मोबाइल पे मैसेज आता होगा कि 50 लाख जीते, 25 लाख जीते, ये बटन दबाए, वो करे। कभी भी कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। अगर ऐसा कोई भी लिक्विडेटिव ऑप्शन आपके सामने आता है, सो मेक श्योर यू हैव टू बी circumspect, आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि वी मस्ट बी circumspect of those who offer us riches, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहे हैं जिन वापस में उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सो ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। Synonyms are wary and careful, and the antonyms are unguarded or incautious. The last word in the list is conundrum. Okay, so conundrum means a difficult problem that seems to have no solution. कोई भी difficult problem को conundrum बोल सकते हैं। For example, the conundrum is that I'm stranded in the middle of nowhere without my cell phone. So कोई व्यक्ति है जो अपने फ़ोन के बिना है और वो कहीं पे एक कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन आई एम फेस्ड विद अ कनंड्रम, जब भी कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, आई ऑफन आस्क माई फ्रेंड फॉर एडवाइस। सो डिफ़िकल्टी को ही कनंड्रम बोलते हैं, बट यहाँ पे डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, एक्सटेंट इसका ज़्यादा है। But it can be synonymous with difficult and quandary, and the antonyms are solution and obviousness. So I hope you have understood all these terms. Let us recall what the word we have read. So first word is anticipate. Anticipate means किसी चीज का पूर्वानुमान लगा पाना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट के दो डेफिनेशन मैंने बताया, पहले कि वो एक नेगेटिव टर्म है जो कि शोषण करना किसी का, एंड दूसरा जो पॉजिटिव टर्म है किसी भी अवसर का फ़ायदा उठाना इन अ पॉजिटिव वे। जैसे कि आपके सामने आपके पास बहुत सारे लोग जो है वो अंडर प्रिविलेज होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सुख सुविधाएं होती हैं। सो उन सुख सुविधाओं का, जैसे आपके पास एक रूम है, अच्छा सा स्टडी टेबल है, अच्छा इन्वायरमेंट है, अब आप उस फैसिलिटी को एक्सप्लॉइट करो और उससे जितना हो सके बेनिफिट लो। द थर्ड वर्ड इन द लिस्ट वाज नॉवेल, इट मीन्स समथिंग न्यू, एंड द फोर्थ वर्ड is circumspect, means be very very cautious, and the last word is conundrum. Conundrum means a difficult problem or situation. So I hope you understood all the words explained in this video. Do comment us below if you didn't get any word or you want to suggest something. For regular updates on various law information, do subscribe to our YouTube channel, and you can also subscribe our public platforms for regular information and updates. Thank you so much for watching the video till the end. Stay tuned, stay healthy.